Hello students, in this video we are going to cover up the 8th chapter of your English course book. The chapter's name is A Cry Against Exploitation. What the word here, cry, represents. Cry का मतलब यहाँ पे क्या है? रोना? नहीं. इसका मतलब रोना नहीं. Here cry means to protest. Protest against what? Against exploitation. Exploitation के against protest करना. What is the meaning of exploitation? An unfair treatment. ठीक है? Unfair treatment. So exploitation means an unfair treatment. जब आपके साथ कोई कुछ गलत करता है तो उसको हम प्रोटेस्ट करते हैं. तो इस चैप्टर का जो नाम है इसका मतलब है कि a cry against exploitation, that means your protest against the unfair treatment that you have received from someone or something. ठीक है, तो इसको बोलते हैं cry, मतलब protest. Exploitation means an unfair treatment. ठीक है, chapter's name is a cry against exploitation. Okay. So we are going to see this protest against an unfair treatment to the society by a person known as Kailash Satyarthi. Kailash Satyarthi. Kailash Satyarthi. Okay. So this chapter is basically deals with the biography of this person, Kailash Satyarthi. Kailash Satyarthi, you can see the picture that just have dropped on the slide. This person is Kailash Satyarthi, and we are going to see his biography in this chapter. ये पूरा चैप्टर जो है वो इनके बायोग्राफी पे ही बेस्ड है. ठीक है. So Kailash Satyarthi is an Indian activist. Okay. Is an Indian activist. N होगा वहां पे. So Kailash Satyarthi is an Indian activist specifically working against discrimination. The first thing that he is against, and this is the exploitation that we are talking about, that is discrimination. ठीक है? And the second exploitation that he was against of was the child labor. These two was the major issues that he was standing against in the society. ठीक है? The first was discrimination on the basis of caste, and the second was the child labor. He is known for his campaigns for child's right and education. तो ये बहुत ही फेमस हैं अपनी कैंपेन्स के लिए, जो हमेशा ये करते रहते हैं. किस चीज के लिए? चाइल्ड्स के, बच्चों के राइट्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए. ठीक है. He was born on 11th January उनका जन्म हुआ था 1954 में in Vidisha, a district in मध्य प्रदेश. ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश, विदिशा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. So his real name was Kailash Sharma, which he changed to Kailash Satyarthi by revoking his family name Sharma to present the symbol of protesting against casteism. ठीक है. तो कास्ट सिस्टम, कास्टिज्म मीन्स कास्ट सिस्टम. इन इंडिया. सो ही वॉज अगेंस्ट दिस कास्टिज्म. ठीक है. और इस कास्टिज्म को प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने अपने नाम में से ये शर्मा सरनेम हटा दिया, मिटा दिया इसे, और अपना नाम रख लिया कैलाश सत्यार्थी, जिस नाम से हम इन्हें आज जानते हैं. कैलाश शर्मा इनका ओरिजिनल नेम है. ओके. ही वॉज ऑनर्ड विथ नोबेल पीस प्राइज 2014 एंड रॉबर्ट एफ कैनेडी ह्यूमन राइट्स अवार्ड इन 1995. इनको 2 अवार्ड्स मिल चुके हैं इनकी पीस के लिए. ठीक है, नोबेल प्राइज फॉर द पीस एंड रॉबर्ट एफ कैनेडी ह्यूमन राइट्स अवार्ड इन 1995. 2 अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं. ठीक है. यू कैन नो मोर अबाउट दिस पर्सन in the internet, or you can go for Wikipedia for the details about his education, his life and all. ठीक है.
So you just have to search this person's name on Google. He is still living. वो अभी भी जिंदा हैं ये, ठीक है. You can calculate the age of his age from 1954. आप आराम से एज कैलकुलेट कर सकते हो 1954 से अभी तक. And he is living now. He is doing his work as he was doing. जैसा वो कर रहे थे, वो आज भी चाइल्ड्स के राइट और एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं सोसाइटी में. दिस कैलाश सत्यार्थी, ठीक है. कैलाश सत्यार्थी anti-child slavery activist. So he is known for his anti-child slavery activist. Slavery means जो बच्चों से काम करवाया जाता है, छोटे बच्चों से, उसको हम anti-child slavery कहते हैं. तो ये हमेशा child slavery के अगेंस्ट रहे हैं और इसके लिए सोसाइटी में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, ठीक है. So now we are here to go to the chapter to understand or read his biography, a short biography. Here's the chapter. Read a story about a brave man and his fight against the vices of the society. Vice का मतलब क्या होता है? Vices, V-I-C-E-S. Vices means बुराइयाँ, ठीक है. तो सोसाइटी में जो बुराइयाँ होती हैं सोसाइटी में, जैसे कि कास्ट सिस्टम और जो चाइल्ड लेबर एंड ऑल, दिस आर ऑल द वाइसेस इन सोसाइटी. तो सत्यार्थी जो हैं वो इन वाइसेस से लड़ने का काम करते हैं, ठीक है. While childhood is synonymous with playful pranks of many of us, there are just as many for whom childhood is an indelible scar that they carry with them for the rest of their lives. इसका फर्स्ट जो पैराग्राफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाइल्डहुड जो है ये जनरली क्या होता है, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. सिनोनिमस मीन्स कंपेयर करना, या बोल सकते हैं कि सेम है, ठीक है, किसके? प्लेफुल प्रैंक्स के लायक है, ठीक है, या प्लेफुल प्रैंक्स के जैसा ही है. तो चाइल्डहुड बोलो या प्लेफुल प्रैंक बोलो, दोनों एक ही होता है. बिकॉज हर एक बच्चे का जो चाइल्डहुड होता है, जो बचपना होता है, वो बहुत ही खुशनुमा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, ठीक है. बहुत ही लाइटली एक बच्चा अपनी लाइफ को जीता है, ठीक है. लेकिन हर बच्चे के साथ क्या ऐसा होता है इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री, ठीक है? क्या हर बच्चे के साथ ये चीज होता है? नहीं. कुछ बच्चों के लिए उनका चाइल्डहुड एक स्कार की तरह होता है. स्कार मीन्स दाग, ठीक है. जब आपको कोई घाव हो जाता है, वो घाव का जो दाग आपके स्किन पर रह जाता है, वो कभी मिटता नहीं, वो आपको बार बार याद दिलाता है उस घाव के बारे में, ठीक है. ठीक उसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका चाइल्डहुड उनके पूरी लाइफ पे एक स्कार की तरह होता है, ठीक है. कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जिनकी चाइल्डहुड उनकी लाइफ पे एक धब्बे की तरह होती है जो कभी मिटाई नहीं जा सकती, इनडेलिबल, जो मिटाई नहीं जा सके, ठीक है. दैट दे कैरी विद देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स. ऐसा क्या होता है उनके बचपना में जो अपने बचपन को कभी भुला नहीं पाते? वो बचपन को हमेशा अपनी लाइफ में एक दाग की तरह रखते हैं, जिसको याद करने से वो डर जाएंगे, जिसको याद नहीं करना चाहते, ठीक है. तो हम उन बच्चों के बारे में यहाँ पर बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं. हम उन बच्चों के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं जो प्रिविलेज में हैं, जो खुश हैं, ठीक है. हम उन बच्चों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बच्चे बेसिकली चाइल्डहुड स्लेवरी से या फिर लेबर से गुजर रहे हैं, ठीक है. लेबर. So, the child slavery refers to enslavement of children below the age of 18 for profit. तो child slavery होता क्या है? किसी बच्चे को जो 18 साल से कम के हैं उनसे जबरदस्ती काम करवाना, ठीक है. often through violence, abuse, threats, inflicted, forced beggings, petty crimes and drug trade. इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिससे जो बच्चों को इसमें ढकेल दिया जाता है, बच्चों को ये सब काम उनसे करवाया जाता है, उनको धमकाकर, उनको डराकर, उनको अब्यूज कर, ठीक है. तो इस तरह के जो जितने भी ऐसे क्राइम्स हैं उनमें इनको ढकेला जाता है, ठीक है. तो इसको बोलते हैं चाइल्ड स्लेवरी और चाइल्ड लेबर. The enslaved children are forced to work as bonded laborers in agriculture, factories, constructions, brick kilns, mines, bars, tourist industries and domestic works, ठीक है. तो जो इस तरह के जो चाइल्ड होते हैं, जो एनस्लेव्ड हैं, जिनको स्लेवरी में घुसा दिया गया है, वो सारे चाइल्ड्स जो हैं उनको जबरदस्ती, उनको एक बॉन्डेड लेबर की तरह काम करना पड़ता है,
ठीक है, कहाँ, एग्रीकल्चर्स में, फैक्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शंस में, इस तरह की जगह पे, माइंस में, ठीक है। तो दे आर फोर्स्ड टू डू दैट, दे आर नॉट हैप्पी इन डूइंग दैट, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इन दिस वे, देयर चाइल्डहुड गेट्स डिस्ट्रॉयड, देयर चाइल्डहुड गेट्स स्टेन्ड, ठीक है। द स्कार दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, यही है उनके लाइफ का स्कार, यही है वो धब्बा जो उनकी लाइफ हमेशा उनके बचपन पे पड़ जाती है, और वो बचपन उनका क्या हो जाता है, स्कार हो जाता है, एक दाग बन जाता है उनकी पूरी लाइफ पे। दिस नॉट ओनली डिप्राइव्स देम ऑफ देयर चाइल्डहुड बट ऑल्सो इंटरफेयर्स विद देयर एबिलिटी टू अटेंड रेगुलर स्कूल एंड इज मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड मोरली हार्मफुल. Even though such exploitation is prohibited by legislation worldwide, child slavery has been prevalent in the world, especially in the developing nations. ठीक है, तो इस तरह का जो चाइल्ड लेबर है वो सिर्फ उनको काम करने पे मजबूर नहीं करता. In fact, it also interferes with their ability to attend the regular school. It interferes with their ability to attend the regular school. मतलब वो इस वजह से स्कूल भी नहीं जा पाते, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते. इसकी वजह से वो मेंटली, फिजिकली, सोशली, ये सभी एंड मोरली दे आर हार्मफुल. एंड इस जो चाइल्ड लेबर है इसीलिए उनके ऊपर मेंटली, फिजिकली और मोरली, ठीक है, वो सभी तरीके से एक तरीके से उनके ऊपर एक हार्म होता है, उनको नुकसान पहुंचता है. उनके मेंटली उनको नुकसान पहुंचता है, फिजिकली तो नुकसान पहुंचेगा ही. बच्चे हैं वो, बच्चों का स्किन कैसा होता है, सॉफ्ट होता है ना. तो जब वो मेहनत करेंगे किसी फैक्ट्रीज में या फिर किसी माइंस में, तो ऑब्वियसली उनका जो स्किन है वो खराब होगा. दे आर फिजिकली हार्मफुल, इट इज फिजिकली हार्मफुल फॉर देम, इट इज सोशली हार्मफुल फॉर देम बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली रेजिंग देमसेल्फ इन अ सोसाइटी टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी इन फ्यूचर, है ना. दे आर रूइनिंग देयर लाइफ. एंड मेंटली मीन्स दे आर नॉट getting the knowledge that they should have by going to the school and attain a knowledge to grow their mind, but their mind is not growing, they are just physically growing. ठीक है. morally कहने का मतलब है जब हम स्कूल जाते हैं तो हम बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक चीज़ें सीखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये बच्चे उससे भी वंचित रह जाते हैं, इससे भी उनको अलग कर दिया जाता है, ये सभी चीज भी वो सीख नहीं पाते हैं. इवन दो सच एक्सप्लॉयटेशन इज प्रोहिबिटेड बाय लेजिस्लेशन वर्ल्ड वाइड, मतलब फिर भी जबकि लेजिस्लेशन मतलब कि जबकि पार्लियामेंट एंड ऑल ये जब लॉ बना हुआ है कि चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड, चाइल्ड लेबर की तरह से एक क्या है, वंचित है, या चाइल्ड लेबर जो है वो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है. प्रोहिबिटेड मीन्स रेस्ट्रिक्टेड, कि चाइल्ड लेबर नहीं हो सकता. उसके बावजूद चाइल्ड लेबर रेस्ट्रिक्टेड है हमारे लॉ में, उसके बावजूद चाइल्ड लेबर प्रिवलेंट है. चाइल्ड लेबर इज एग्जिस्टिंग, चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट्स एक्चुअली ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एंड स्पेशली इन द डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, ठीक है. सो लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ अ मैन हु बिलीव्स दैट फ्रीडम इज नॉट नेगोशिएबल एंड इज ऑन अ हरक्यूलिन मिशन टू हेल्प चिल्ड्रन इन नीड. तो अब हम एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं, रीड करते हैं, जो इंसान बिलीव करता है कि जो फ्रीडम है वो नेगोशिएबल नहीं है. फ्रीडम इज नॉट नेगोशिएबल, ठीक है. नेगोशिएबल मतलब कि फ्रीडम का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. फ्रीडम इज फ्रीडम एंड इज ऑन अ हरक्यूलिन मिशन, मतलब एक ऐसा काम, हरक्यूलिन मतलब एक ऐसा काम, ऐसा वर्क जो बहुत ही एफर्ट मांगता है, जो बहुत मेहनत मांगता है. और ये जो पर्सन है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसी तरह के एक हरक्यूलिन मिशन में निकले हुए हैं, ठीक है. ऐसा काम, ऐसे मिशन में निकले हैं जो मिशन बहुत ही टफ है, जिसको करना इतना इजी नहीं है. ऐसे काम को करने के लिए वो निकले हैं. क्यों? ताकि वो चिल्ड्रंस को हेल्प कर सके. एंड हु इज दिस पर्सन दैट वी आर गोइंग टू टॉक और वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इज कैलाश सत्यार्थी. ओके. So Kailash Satyarthi was born as Kailash Sharma on 11th January 1954 in Vidisha, a small town in Madhya Pradesh. His father was a police constable and his mother, though uneducated, was a very idealistic and helpful lady who made a huge impression on the mind of the young Kailash. At a very young age, Kailash learnt Urdu from a Maulvi at a nearby mosque even before he learnt English and Hindi. ठीक है. तो कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो 11 जनवरी उनका
11 जनवरी उनका बर्थ हुआ था एंड उनके फादर जो थे वो पुलिस कांस्टेबल थे, पुलिस में काम करते थे। मदर कुछ भी नहीं करती थी, शी वॉज अनएजुकेटेड बट दो शी वॉज अनएजुकेटेड सी वॉज आइडलिस्टिक, मतलब वो बहुत ही अच्छी लेडी थी, वो हमेशा सबको हेल्प करती थी। और यही देखकर कैलाश की लाइफ पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा उनकी मदर को देखकर, और वो भी सबको हेल्प करना सीख गए। बहुत ही कम एज में उन्होंने उर्दू सीख लिया था एक मौलवी से, जो कि उनके पास में एक मॉस्क्यू था, मतलब एक मस्जिद था, वहां जाकर उन्होंने उर्दू सीख लिया था इवन बिफोर ही लर्नड इंग्लिश एंड हिंदी। एट एन इम्प्रेशनेबल एज, मतलब इम्प्रेशनेबल मतलब एक ऐसा एज जहां पे हर चीज का इंप्रेशन आपके लाइफ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पड़ता है, ठीक है। दैट इज योर एज इन योर स्कूल, जो भी चीज आप सीखते हो वो हमेशा आपके लाइफ में आपके साथ रहता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इम्प्रेशनेबल एज। तो एट एन इम्प्रेशनेबल एज कैलाश नोटिस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी एंड वॉज डीपली अपसेट, ठीक है। तो एक उसी एज में कैलाश जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नोटिस करते हैं सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, लोग एक दूसरे को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट। और ये चीज जब कैलाश ने देखा, कैलाश सत्यार्थी ने देखा, तो व्हाट ही डिड ड्यूरिंग हिज अर्ली स्कूल डेज ही वुड नोटिस अ यंग चाइल्ड द स्कूल ऑफ अ कॉबलर। एक कॉबलर मतलब जो जूते सिलते हैं, ठीक है, मोचीज को बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। तो एक कॉबलर का बेटा उनके स्कूल में आया करता था, तो वो सभी लोग बाकी जो उनके स्कूल में लोग थे, ठीक है, वो उस बच्चे के साथ में अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। एंड ये चीज सत्यार्थी ने नोटिस किया वेटिंग आउटसाइड द स्कूल वॉचिंग स्कूल चिल्ड्रन वॉक बाय, ठीक है। तो दिस मेड द कैलाश क्वेश्चन व्हाई द चाइल्ड वाज नॉट स्टडीइंग इन द स्कूल, व्हाई दिस चाइल्ड हु इज अ सन ऑफ अ कॉबलर is not going to school, why he is not studying. He set out looking for a answer. His first encounter was with his schoolmaster, who told him that children of poor people were born to work because they couldn't afford an education. तो फर्स्ट टाइम जब वो अपने स्कूल मास्टर के पास गए और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि वाई दिस चाइल्ड, दिस कॉबलर सन इज नॉट स्टडिंग इन द स्कूल, क्यों, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, ये रीजन क्या है इसका, ठीक है। तो उसका आंसर ढूंढ रहे थे। ही वॉज सेट टू लुकिंग फॉर एन आंसर एंड he got an answer from the schoolmaster. What he got? What the schoolmaster has said? The schoolmaster has told him that the children of the poor people, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनके पास एजुकेशन को अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं होते, and that is why they are not coming to the school. The inequality rattled young कैलाश, ठीक है। यंग कैलाश जो है, जो बहुत ही यंग है एज में अभी, तो कैलाश सत्यार्थी को बेसिकली ही इज अ कैलाश शर्मा नाउ, अभी वो कैलाश शर्मा है, अब तक उन्होंने नाम चेंज नहीं किया है अगर हम बायोग्राफी की बात कर रहे हैं तो कैलाश शर्मा जो थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखकर दुखी होते हैं, अंदर से परेशान हो जाते हैं, गेट्स रैटल्ड एंड ही पोज्ड द सेम क्वेश्चन टू हिज प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल के पास जाके फिर से यही क्वेश्चन पूछते हैं एंड ही गेट्स द ऑलमोस्ट द सेम आंसर। ऑल्सो देयर फैमिली एक्वेंटेंसेस, हिज पेरेंट्स, इवन टू द कॉबलर, ठीक है। जो कॉबलर जिसके बच्चे को उन्होंने देखा था, जो स्कूल के बाहर खड़ा था, ठीक है, उसको भी वो देखते हैं, उससे भी जाके बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने फैमिली के जो जाने माने जो अपने रिलेटिव्स हैं उनसे जाके बात करते हैं। इन सब का आंसर एक ही था, बट गॉट द सेम रेस्पॉन्स। द थॉट ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड एंड इनइक्वालिटी लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द यंग माइंड विच शोड द सीड ऑफ द बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। और ये जो देखा उन्होंने, ये जो सारी जो इवेंट्स उन्होंने विटनेस की अपने स्कूल टाइम में, उस यंग एज में, ये चीज़ उनके लाइफ में बहुत बड़ा इंप्रेशन डालता है, ठीक है। और इसी वजह से वो ठान लेते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, वो बच्चे जो गरीब हैं वो भी स्कूल में पढ़ने चाहिए, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को देखकर वो परेशान हो गए थे। ये इनइक्वालिटी उनके लाइफ पे, उनकी यंग एज पे, यंग माइंड पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा इंप्रेशन डाला था, ठीक है, जो कि एक बीज की तरह था जो पेड़ बनकर निकला और उसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। दिस इज द ट्री एंड द सीड वाज दैट इनइक्वालिटी, द स्टोरी दैट वी हैव टॉक्ड, जो उनके बचपन में उन्होंने देखी थी उस कॉबलर के सन के बारे में, ठीक है। एंड देन कैलाश टुक हिज फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन by collecting school books from his friends and acquaintances after the annual examination and distributing them to young children who wanted to study but cannot afford to buy those books. फिर कैलाश ने अपने पहला कदम उठाया इस आंदोलन में
और उन्होंने क्या किया, स्कूल के जितने भी उनके दोस्त हैं, उनके एक्वेंटेंसेस हैं, उनके जान पहचान के लोग हैं, उन सब से उन्होंने बुक्स कलेक्ट करने शुरू किए। ठीक है, जो पुराने बुक्स हम फेंक देते हैं, पढ़ते नहीं है, तो जो हमारे क्लासेस खत्म होते हैं एंड वी थ्रो द बुक्स आउट, ठीक है, या फिर हम बेच देते हैं उसको। बट कैलाश ने क्या किया, उस बुक्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया और उस बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया, गरीब जो छोटे छोटे जो गरीब बच्चे हैं उनको जो बुक नहीं खरीद सकते उनको जाकर बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। कैलाश कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है, ग्रेजुएशन की है, मतलब ही इज अ इंजीनियर आफ्टर फ्रॉम सम्राट अशोक टेक्नोलॉजीज इंस्टीट्यूट ऑफ विदिशा से ही उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी जो कि इलेक्ट्रिकल्स में थी। एंड लेटर टुक अप अ जॉब एज अ लेक्चरर एट अ कॉलेज इन भोपाल में एक कॉलेज में उन्होंने लेक्चरर का भी काम किया है कुछ समय तक। इन द ईयर 1980 ही स्टार्टेड बचपन बचाओ आंदोलन। 1980 में उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो सोचो ही वॉज अ इंजीनियर विथ एजुकेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो इंजीनियर बन गए तो हाँ ठीक है अब हो गया, जॉब मिल गया मुझे, अब मैं आराम से बैठ के अपना खाऊंगा। नो, he was not having that attitude. He was there to do something exceptional, something unconventional in the society. कुछ चेंज करना चाहते थे। ठीक है, तो इसीलिए इंजीनियर होने के बावजूद भी उन्होंने साइड बाय साइड अपना एक सोशल वर्क शुरू कर दिया जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। अराउंड द सेम टाइम ही स्टार्टेड अ मैगजीन, संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है, उन्होंने एक मैगजीन भी लिखना शुरू किया, ठीक है, जिसका नाम था संघर्ष जारी रहेगा, द स्ट्रगल शैल कंटिन्यू, द इंग्लिश ऑफ दैट नेम, which documented lives of the vulnerable peoples and he was shaken by the prevalence of the child labor in India. तो इस मैगजीन के थ्रू उन्होंने बच्चों पर, जो ऐसे बच्चे जो बहुत ही गरीब हैं, जो बहुत ज़्यादा vulnerable मीन्स बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेस से आते हैं जहाँ पे बहुत ही इजीली उनके ऊपर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया। He started writing, documenting on those children. There he noticed a new thing. वहाँ पे उन्होंने फिर से एक चीज नोटिस की, that is child labor. And the fact that acute poverty often forced the poor people to repay their monetary debts through bonded servitude of their children. और उन्होंने नोटिस किया कि ये चाइल्ड लेबर क्यों होता है। चाइल्ड लेबर इसलिए होता है क्योंकि गरीबी की वजह से जो गरीब लोग होते हैं वो अपने डेट्स, अपने कर्ज, अपने उधार को पूरा नहीं कर पाते और उस उधार को पे करने के लिए अपने बच्चों को उन्हें काम पर लगाना पड़ता है ताकि बच्चे भी कुछ पैसे कमाएं तो वो अपने डेट्स को पूरा कर सके। तो दिस इज द रीजन दैट ही हैज नोटिस्ड बिकॉज ऑफ द चाइल्ड लेबर इन इंडिया। इन द ईयर 1998 में he led the global march against child labor, traveling through 103 countries and nearly 80,000 kilometers, and drew global attention to the grave issue of child labor and exploitation of the deprived children. 1998 में उन्होंने क्या किया, एक मार्च किया। ठीक है, ग्लोबल मार्च, जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं था, इंडिया के बाहर भी था, और उन्होंने करीब 103 कंट्रीज में यह मार्च किया जो कि अराउंड 80,000 किलोमीटर्स होता है। ये बताने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि चाइल्ड लेबर एक कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, और कैसे चिल्ड्रन का जो बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो एक्सप्लॉइट होता है इसकी वजह से। दिस मूवमेंट लेड टू द एडॉप्शन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 182 ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर इन 1999, और इसी की वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाया गया चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन किया गया। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप द गुड वेव इंटरनेशनल फाउंडेशन। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो बहुत ही बड़ा हाथ रहा है उनका इस इंटरनेशनल फाउंडेशन को बनाने के लिए, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एमिंग टू एंड इलीगल चाइल्ड लेबर इन द रग मेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडेशन क्यों बनाया है, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए, इस चीज़ पे काम करते हैं वो कि जो चाइल्ड लेबर हैं उसको रोका जाए, उसको इलीगल बनाया जाए और उसको कंप्लीटली खत्म किया जाए। कैलाश फॉट टूथ एंड नेल to create awareness about the extensive use of
child labor and exploitation in the industry to raise the stake of the industry and to encourage the industry in manufacture rugs made without child labor. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ही क्रिएटेड अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस फैलाया उन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज को चाइल्ड्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए और उनको सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो चाइल्ड लेबर से नहीं बना है, ठीक है, तो उन्होंने इंडस्ट्रीज को भी एनकरेज करना शुरू किया, ठीक है, दिस इज हाउ ही स्टार्टेड वर्किंग अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, इंडस्ट्रीज के साथ भी वो मिलकर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को अवेयर कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को वो प्रमोट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि वो चाइल्ड लेबर को बंद करें, चाइल्ड लेबर से काम ना लें, ठीक है। कैलाश वॉज ऑल्सो deeply pained and affected by the inhuman behavior meted out to manual scavengers and harijans by the upper class, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजर्स मतलब वो लोग जो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे गढ़ा बिनने वाला काम, ठीक है, ये सब जो काम होता करते हैं उनको हम लोग मैनुअल स्कैवेंजर्स कहते हैं, ठीक है, जो हाथों से काम करते हैं या फिर जो नाली साफ करते हैं उनको मैनुअल स्कैवेंजर्स और हरिजन्स, ठीक है, इनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है सोसाइटी में, ठीक है, स्पेशली बाय द अपर क्लास, इस चीज को भी देखकर वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए थे। एंड द अपर कास्ट पीपल कंसीडर देम अनटचेबल, जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो उनको अनटचेबल मानते हैं, उनको छूत अछूत का भेदभाव करते हैं उनके साथ में, ठीक है, दैट्स अनटचेबल। एंड इन द ईयर 1969 द बर्थ सेंटेनरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एंड पॉलिटिकल लीडर अक्रॉस द स्पेक्ट्रम वर मेकिंग pro-poor speech full of passion, idealism and sympathy. This fascinated the 15-year-old Kailash, who wanted to become a politician to cure the vices of the society such as untouchability and child labor. ठीक है, तो 1969 में एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा था जिसको प्रो पुअर स्पीच बोलते हैं, ठीक है, और इस चीज की वजह से जो 15 इयर्स के थे कैलाश उस समय, उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए एंड ही वांटेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन, अब पॉलिटिशियन बनना चाहते थे वो, ताकि वो सोसाइटी में सारी की सारी अनटचेबिलिटीज और चाइल्ड लेबर को खत्म कर सके, ठीक है, तो दिस इज व्हाट ही वाज गेटिंग पैशनेट अबाउट टू बीइंग ए पॉलिटिशियन, ठीक है, अब उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं पॉलिटिशियन बनूंगा तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, सो ही वाज गेटिंग इंस्पायर्ड विद दिस मूवमेंट, ओके। तो हरिजन इन विदिशा, द हरिजन्स मतलब जैसे मैंने बताया द मैनुअल स्कैवेंजर्स, उन्हीं को हरिजन कहा जाता है, वेर नॉट अलाउड टू एंटर देयर होम्स थ्रू द फ्रंट डोर एज दे वर कंसिडर्ड इम्प्योर एज अ ट्रिब्यूट टू गांधी जी। कैलाश डिसाइडेड टू यूज हिज आइडियलिज्म टू टर्न द टाइड इन फेवर ऑफ सोशली एक्सक्लूडेड क्लासेस एंड ऑर्गेनाइज अ कम्युनिटी डिनर, ठीक है, तो गांधी जी भी इस चीज के अगेंस्ट थे, गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, ठीक है, इस अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। Who thought this? Obviously कैलाश thought this, एंड उन्होंने हमेशा नोटिस किया था कि जो हरिजन्स हैं उनके ही प्लेस विदिशा में वो देखते थे कि जो हरिजन्स हैं उनको घर के सामने से फ्रंट डोर से उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता, बिकॉज उनको कंसिडर करते हैं इम्प्योर, उनको इम्प्योर माना जाता है, बट एक्चुअली ये था नहीं, ठीक है। सो व्हाट कैलाश थॉट कि अब एक चीज करना चाहिए एंड ही डिसाइडेड टू डू अ कम्युनिटी डिनर करना का एक प्लान बनाते हैं। वो ऐसा प्लान बनाते हैं कि कम्युनिटी डिनर रखा जाएगा जिसमें सभी लोग, हर तरह के कास्ट के लोग वहां पे आएंगे और एक साथ रात को एक भंडारा, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी डिनर, उसी को कहते हैं भंडारा, ठीक है, तो वो भंडारा रखते हैं जहां पे हर तरह के लोग, चाहे वो हर किसी भी कास्ट के हों, वो आकर वहां पे खाने के लिए अलाउड थे। वेयर फूड वुड बी प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड बाय हरिजन्स इन द क्लीन एंड हाइजेनिक एनवायरमेंट। वहां पे वो क्या करते हैं, क्लीन और हाइजेनिक एनवायरमेंट मतलब कि बहुत साफ सुथरा एक एनवायरमेंट बनाते हैं, एक प्लेस बनाते हैं जहां पे हरिजन्स ने खाना बनाया है, बस देयर डिफरेंस इज द फूड वाज मेड बाय हरिजन्स, ठीक है। अब होता क्या है कि when Harijans have made the food, the other people will not eat, or upper class will not eat that food because the Harijans have made it, ठीक है। तो इसी चीज को रोकने के लिए उन्होंने ये कम्युनिटी डिनर रखा था, ठीक है। तो वहां पे भी उन्होंने वही किया कि क्लीन और हाइजेनिक एनवायरमेंट में उन्होंने क्या किया, सारे के सारे खाने जो हैं वो हरिजन्स के थ्रू बनवाया। People from the upper caste and local political leaders were invited to guests
as guests to partake the food and spread the message of equality. तो अपर क्लास के जो लोग हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सभी लोगों को वहाँ बुलाया गया. पार्टेक मतलब होता है पार्टिसिपेट करने के लिए. पार्टेक मीन्स टू पार्टिसिपेट. ठीक है, फूड में जो कम्युनिटी डिनर है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको बुलाया गया और ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए कि इक्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में. The many leaders in upper caste people gladly accepted the invitation to participate in the event. बहुत सारे लीडर्स जो पॉलिटिशियंस थे अपर कास्ट के वो सभी लोगों ने तो एक्सेप्ट किया इन्विटेशन को. However, the member of the हरिजन community were very skeptical about the success of the function. Skeptical means होता है skeptical means doubtful थे. जो हरिजन कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे वो इस बात के लिए डाउटफुल थे कि वहाँ पे इस तरह के जहाँ पे इवेंट में जहाँ पे सारे खाना जो हरिजन्स ने बनाया है वहाँ पे ये अपर कास्ट और लीडर्स आएंगे, ये उनका एक डाउट था. ठीक है, और आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ परसुएशन यंग कैलाश मैनेज टू कन्विंस अ फ्यू लेडीज ऑफ द कम्युनिटी टू प्रिपेयर फूड फॉर द ओकेजन. ठीक है, लेकिन इसलिए ज़्यादातर हरिजन्स जो थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि हम वहाँ पे खाना बनाएं उस इवेंट में. ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल से कैलाश ने कुछ औरतों को, कुछ विमेंस को जो कि ऑब्वियसली हरिजन्स हैं, उनको तैयार किया कि वो इस ओकेजन पे, इस इवेंट पे खाना बनाए. कैलाश एंड हिज फ्रेंड हैड मोबिलाइज्ड द फंड फॉर हिज इवेंट विथ विच दे परचेज स्टेपल्स एंड वेजिटेबल्स फॉर द इवेंट. तो जो फाइनेंसेस थे वो पूरे कैलाश और उनके कुछ फ्रेंड्स उसे मिलकर फंड जमा कर लिए और वहाँ पर जो भी खाने की सब्जी और जो भी चीज़ें हैं वो सब लेकर आ गए, जितनी भी सामग्री जो खाना बनाने की जरूरत पड़ेगी. स्लोली मिनट्स टर्न्ड टू आवर्स एंड सून इट हैड बिकम क्वाइट डार्क एंड नॉट अ सोल टर्न्ड अप फॉर द डिनर. और एक्चुअली वैसा ही हुआ जैसा हरिजन्स कम्युनिटी के मेंबर्स सोच रहे थे, जैसा उनको डर था कोई भी वहाँ पर खाना खाने नहीं आएगा. तो मिनट से घंटे हो गए, रात हो गई, लेकिन कोई भी वहाँ पर खाना खाने नहीं आया. नॉट अ सोल टर्न्ड अप फॉर द डिनर. नॉट अ सोल टर्न्ड अप मतलब कोई भी वहाँ पर खाना खाने नहीं आया. Kailash and his friends were more disheartened than the हरिजन कम्युनिटी. और कैलाश और उनके फ्रेंड इस बात से ज़्यादा दुखी हुए थे क्योंकि हरिजन कम्युनिटी को पहले से पता था कि ऐसा होगा, बट कैलाश और उनके फ्रेंड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर रखे थे. सो दे वर वेरी सैड विद दिस ओकेजन दैट हैपेंड. ठीक है, द हिपोक्रेसी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर इन द सोसाइटी एट लार्ज वॉज क्लियरली एक्सपोज्ड. इससे क्या पता चला था कि जितने भी जो अपर क्लास के लोग हैं वो बाहर से दिखते कुछ और हैं, स्पेशली पॉलिटिशियंस, और अंदर से कुछ और हैं. उसी को बोलते हैं हम लोग हिपोक्रेसी. मतलब बाहर से आप कुछ और दिखते हो, अंदर से आप कुछ और होते हो. ठीक है, तो जब जो ये सब पॉलिटिशियंस जो बड़े बड़े भाषण देते हैं वहां पे खड़े होके कि गरीबों को साथ देना है एंड ऑल, ठीक है, बट व्हेन दे वर कॉल्ड टू ईट एट अ कम्युनिटी डिनर वेयर ऑल द फूड्स वर मेड बाय दिस हरिजन्स, नो वन हैज कम टू दैट इवेंट. कोई भी वहां पर उस इवेंट में नहीं आया. इवन द पॉलिटिकल लीडर्स हैड नॉट कम. देन द सोसाइटी एट लार्ज वाज क्लियरली एक्सपोज्ड. सोसाइटी का जो ये बहुत ही बड़ा हिपोक्रेसी है वो उस दिन एक्सपोज हो गया. उस दिन उनको समझ में आ गया. किसको? कैलाश को. कैलाश शर्मा को ये चीज समझ में आ चुका था कि ये सब कुछ जो है सिर्फ एक ढोंग है, हिपोक्रेसी है. ठीक है, दिस मेड यंग कैलाश फ्यूरियस. At a disappointed Kailash and his friends had to consume the food prepared for the occasions well past midnight. और आधी रात हो जाने के बाद, इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आया तो कैलाश और उनके फ्रेंड्स को ही वो खाना खाना पड़ा. As Kailash put the first morsel in his mouth, disappointed with the writ large on his face, he cried inconsolably. ठीक है, कॉन्सोलेबली मतलब कि बहुत ही ज्यादा दुख से वो रोने लगे. जब से उन्होंने पहला निवाला, मॉर्सल मतलब होता है निवाला, ठीक है, मॉर्सल तो कवर जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला कवर जब उन्होंने खाने का मुंह में डाला तो वो पहले कवर को डालते ही इस सारे चीज़ों से, सारे इवेंट से बहुत ज़्यादा दुखी थे और वो रोने लगे. ठीक है, देन द वेरी फैक्ट दैट सच एन इनिशिएटिव वॉज टेकन बाई कैलाश, द वेरी फैक्ट दैट सच एन इनिशिएटिव वॉज टेकन बाई कैलाश. बट इन सभी इवेंट से पता क्या चलता है कि भले ही वो इवेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली पता ये चलता है कि कैलाश ने कम से कम इनिशिएटिव तो लिया, एटलीस्ट ही ट्राइड. डेयरिंग द सोसाइटी वॉज वेल अप्रिशिएटेड बाय द हरिजन्स. ठीक है, और इस वजह से हरिजन्स जो थे वो कैलाश को बहुत पसंद करने लगे. जो उन्होंने सबको बहुत अप्रिशिएट किया. हरिजन्स जितने भी थे उन्होंने कैलाश को बहुत अप्रिशिएट किया. व्हेन कैलाश वेंट बैक होम ही वॉज
he saw a furious crowd of upper caste Brahmins gathered in front of his house. अब जितने भी ब्राह्मण्स हैं सोसाइटी का पता चल चुका है कि कैलाश जो है वो हरिजन्स के साथ में बैठ के खाना खाया है. Then these Brahmins have come to their house and they are protesting against Kailash that why Kailash have sat with this Harijans. कैलाश जो है वो हरिजन के साथ क्यों बैठा, क्यों उनके साथ खाना खाया. तो ब्राह्मण जो है वो गुस्से हैं. His family was humiliated by the upper caste Brahmins. जो upper caste Brahmins हैं वो भी उनकी फैमिली को ह्यूमिलिएट करती है, उनकी फैमिली को बेइज्जती करती है क्योंकि कैलाश ने हरिजन्स के साथ में जाकर बैठकर खाना खाया है. They also thundered that Kailash had committed an unpardonable sin and that the whole family would be excommunicated. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं सब जो जितने भी ब्राह्मण्स हैं, जो अपर कास्ट ब्राह्मण्स हैं, वो बोलते हैं कैलाश जो है वो बहुत ही बड़ा गलती किया है. He has committed an unpardonable sin. ठीक है, एक बहुत ही बड़ी गलती की है. सिन मतलब गलती, इसलिए उसकी फैमिली और उसको एक्सकम्युनिकेट कर देना चाहिए. एक्सकम्युनिकेट मतलब होता है देश निकाला कर देना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा, आप उस गांव में नहीं रह सकते. ठीक, दैट इज एक्सकम्युनिकेशन. तो excommunicated, his family should be excommunicated. After heated dialogues, the upper caste community ordered his family member to disown Kailash. ठीक है, बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद में, बहुत सारे गुस्से और नफरत जैसे डायलॉग्स बोलने के बाद में, हेटेड डायलॉग्स बोलने के बाद क्या डिसाइड होता है कि उनकी फैमिली तभी गांव में रह सकती है अगर वो कैलाश को अपनी फैमिली से बाहर निकाल दें. ठीक है, एंड शिफ्ट हिम टू अ सेपरेट रूम इन द बैकयार्ड ऑफ देयर हाउस एंड फेस सोशल बॉयकॉट बाय द सोसाइटी. और कैलाश को घर से बाहर निकाल के एक सेपरेट रूम में रख दिया जाए और वो कभी भी अब घर के अंदर नहीं आएगा, उसको बाहर ही उस सेपरेट रूम में रहना पड़ेगा. दिस द अपर कास्ट ब्राह्मण्स हैव डिसाइडेड टू डू. ठीक है, इनका ऐसा डिसीजन था कि अगर कैलाश वहां ऐसा अगल में अपने एक अलग कमरे में रहता है तो उसकी फैमिली यहाँ पे सोसाइटी में रह सकती है. He was instructed not to enter the house from the front and was given separate utensils. उसको भी अलाउड नहीं था कि वो घर के अंदर पहले दरवाजे से घुसे और उसके लिए जो सारे बर्तन थे खाने के और खाना पकाने के वो सभी अलग कर दिए गए ताकि कोई भी उसको टच ना करे, कोई भी उसके पास ना जाए. ठीक है, दिस इज द सिचुएशन वेयर इट इज गोइंग बिकॉज कैलाश जो था वो हरिजन के साथ बैठकर आ गया है ना. दिस इज द प्रॉब्लम. तो ही टॉस्ड अराउंड होल नाइट इन दैट डार्क एंड डिंजी रूम फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट. ठीक है, अब उस छोटे से रूम में बैठकर, डिंजी मतलब छोटा सा रूम है, डिंजी रूम. ठीक है, डिंजी रूम में छोटा सा रूम, तो वहां पे बैठ के वो पूरी रात सोचता रहता है पूरे इस इवेंट के बारे में, पूरे इस समय के बारे में जो वो अभी घटा है. ठीक है, द इवेंट ही वाज ऑर्गेनाइज्ड, हाउ ही फेल्ड एंड the Brahmin that came to her, that had come to his house to excommunicate he and his family. ठीक है, तो दिस इवेंट, जो पूरे इवेंट को वो पूरी तरीके से सोच रहा है वहां बैठ. His anger at the feudal society and political class knew no bounds. He made up his mind that very day that he did not belong there and did not want to be associated with such a hypocritical community. उसी दिन वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब इस जगह पे नहीं रहना है, इस सोसाइटी में नहीं रहना है जहां पे इतनी हिपोक्रेसी है. ठीक है, he was miffed that the community and his family had made him an outcast and decided to forsake his surname. उनको बहुत गुस्सा आया इस बात से कि उस कम्युनिटी और इवन उनकी फैमिली ने भी उनको आउटकास्ट कर दिया है, मतलब उनको घर से बाहर निकाल दिया है. इवन हिज फैमिली हैज डिसाइडेड टू आउटकास्ट. ठीक है, उनको आउटकास्ट कर दिया है. आउटकास्ट करने का मतलब क्या होता है कि उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया है. ठीक है, एंड ही डिसाइडेड टू फोरसेक हिज सरनेम. तो उन्होंने अब डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपने सरनेम को छोड़ दूंगा, अपनी फैमिली नेम को छोड़ दूंगा. ठीक है, दिस इज वाई ही बिकेम सत्यार्थी. अब समझ में आ जाना चाहिए कि उनका नाम क्या था पहले, कैलाश शर्मा, एंड नाउ ही बिकेम कैलाश सत्यार्थी. इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से उनका नाम चेंज हुआ. ठीक है, तो अ फ्यू इयर्स लेटर ही ड्रॉप्ड हिज फैमिली नेम एंड चेंज हिज सरनेम टू सत्यार्थी, अ सीकर ऑफ ट्रुथ. सत्यार्थी का मतलब है वो जो सच की खोज में है. ठीक है, एंड दस अ शाइनिंग स्टार वाज बॉर्न. और इस तरीके से उनका एक्चुअल जन्म हुआ. ठीक है,
मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि उनका जन्म एक्चुअली 2011 में नहीं हुआ था, जब उन्होंने अपना नाम चेंज किया तब उनका एक्चुअल जन्म हुआ था, जिनको आज हम जानते हैं एज कैलाश सत्यार्थी। In the last 35 years, Kailash Satyarthi was successfully rescued over 83,000 children and adults from child labor, trafficking and other exploitative situations in India. और अगले 35 साल उन्होंने पूरी तरह से इसी चीज पे डेडिकेट कर दिया। ठीक है, वो करीब 83,000 बच्चों को चाइल्ड लेबर से निकाल कर लाए। ठीक है, और ट्रैफिकिंग से निकाल कर आए। ट्रैफिकिंग मीन्स चाइल्ड को बच्चों को लेबर हो गए तो आपका चाइल्ड लेबर जैसे इंडस्ट्री में काम कराना। ट्रैफिकिंग मतलब क्राइम में झोंक देना, गलत कामों में झोंक देना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो उन दोनों में फंसे हुए करीब 83,000 बच्चों को उन्होंने रेस्क्यू किया, बचाया। His intervention have positively and impacted the lives of the thousands of children working in industries such as carpet weaving, bangle making, circus industries, agricultural labor, stone quarries, and brick kilns, beside domestic child servitude across the world. तो ये सारी चीजें, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट। इस सारे से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ चाइल्ड्स को बाहर निकाला, उनको बचाया। ठीक है, एंड फॉर हिज एग्जेम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी ही वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज इन 2014। दिस यू हैव टू बाय हार्ट। 2014 में 2014 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए? पीस के लिए मिला। ठीक है, इन द रिसेंट ईयर्स टू ऑफ हिज इनिशिएटिव्स drew the world's attention to the issue of child slavery. One of them is the 100 million for 100 million campaigns, wherein he endeavors that 100 million privileged youth and children across the world support their 100 millions. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था, अभी रिसेंट में एक मूवमेंट शुरू किया था कुछ सालों पहले, जिसका नाम था 100 मिलियंस फॉर 100 मिलियंस। ठीक है, एक इनिशिएटिव था इनका चाइल्ड स्लेवरी को कम करने के लिए। इसमें इसका मतलब यह है कि जो 100 मिलियंस प्रिविलेज्ड यूथ और चिल्ड्रंस हैं, मतलब जो कि ऑब्वियसली खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, स्कूल जाते हैं, दे आर प्रिविलेज्ड यूथ चिल्ड्रंस। तो वो बोलते हैं कि ऐसे 100 चिल्ड्रंस जो कि खुश हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से प्रिविलेज्ड हैं, उनको अपने हर एक चाइल्ड चिल्ड्रन को कुछ अपने जैसे ही किसी एक चिल्ड्रन जो कि प्रिविलेज नहीं है उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो इसका मतलब यही है बेसिकली, वन ऑन वन। ठीक है, तो एक चाइल्ड जो कि प्रिविलेज्ड है वो दूसरी चाइल्ड जो कि प्रिविलेज नहीं है उसको हेल्प करना चाहिए। तो दिस इज एक छोटा सा इनिशिएटिव था इनका जो ये शुरू किए थे टू अवॉइड चाइल्ड स्लेवरी। ओके, नॉट सो प्रिविलेज्ड peer टू ब्रेक आउट ऑफ स्लेवरी, डेंजर एंड वायलेंस। ठीक है, then second one is the 12,000 kilometer Bharat Yatra from Kashmir to Kanyakumari, which he led along with children abuse survivors, and the movement received unanimous support from civil society organizations, politicians across party lines, bureaucrats, celebrities and faith leaders, and led to the Union Cabinet approving the Trafficking of Person Prevention, Protection and Rehabilitation Bill 2018 in February 2018। तो उसके बाद जो दूसरा उनका बहुत बड़ा जो मेजर रोल रहा है इन सब में, वो है दूसरा भारत यात्रा, जो कि करीब 12,000 किलोमीटर्स का था, कश्मीर से कन्याकुमारी में। इसमें ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स थे वो चाइल्ड अब्यूज़ के सर्वाइवर्स थे, ऐसे सर्वाइवर्स जो चाइल्ड अब्यूज़ में फंस चुके हैं और अब वो वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। तो ऐसे चाइल्ड अब्यूज़ जो सर्वाइवर्स हैं वो उनके साथ में वॉक कर रहे थे इस 12,000 किलोमीटर्स की भारत यात्रा में। इसको देखकर बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़े, बहुत सारे लोग आके सपोर्ट किए इन चीज़ों को सोसाइटी में, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, सेलिब्रिटीज़ भी थे इवन। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत फेमस हो गया एंड इट लेड टू मेकिंग बिल और लॉ, एक लॉ बनाना पड़ा उन सबको चाइल्ड प्रिवेंशन को रोकने के लिए यूनियन कैबिनेट में। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में या कैबिनेट के अंदर एक लॉ बनाना पड़ा उनको। उस लॉ का नाम था द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स प्रिवेंशन,
प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2018 इन फरवरी 2018 में जल्दी ही, अभी 2 साल ही हुए हैं, सोचो, तो जस्ट 2 years बिफोर की बात है, ठीक है, कि इन्होंने ये बिल जो है कैबिनेट में बना। With each milestone, Kailash Satyarthi works harder to live up to a promise he once made to himself. I will see the end of child slavery in my lifetime. उनका एक तरह से एम है उनके लाइफ का कि मेरी डेथ से पहले मैं चाइल्ड स्लेवरी को खत्म होते हुए देखूं। What's the price of free to catch a glimpse of his journey on a noble mission? ठीक है, अब द प्राइस ऑफ फ्री जो है वो एक तरह का वर्क है, एक तरह का मूवी, शॉर्ट मूवीज ऐसा बोल सकते हैं। यू कैन सर्च ऑन द गूगल और उसमें आप देखोगे तो यू कैन सी द जर्नी ऑफ कैलाश सत्यार्थी वेरी इजीली एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे छोटा सा एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है, यू कैन गो फॉर इट इफ यू वांट, ठीक है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर एंड यू मस्ट हैव नोन अबाउट दिस पर्सन कैलाश सत्यार्थी। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि यू शुड ऑल गो टू द गूगल एंड सर्च समथिंग मोर अबाउट दिस पर्सन एंड एटलीस्ट हैव सम मोर योर ओन ओपिनियन, योर ओन नॉलेज अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन इज अ एक्टिविस्ट एंड ही इज प्रेजेंट एंड ही इज एक्टिव नाउ इन द पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। तो एक बार जानना तो बनता है, सो यू ऑल्सो गो एंड सर्च अबाउट दिस पर्सन, स्पेशली ऑन विकिपीडिया यू कैन गेट एवरीथिंग। सो in this way, we have completed the chapter. You can go for all the past videos of your class in the playlist in the I button, or I will give it in the description. Okay? Or you can search it on my YouTube channel too. There are playlists for your classes, and you will get all the videos that are respectively made for your class, and you can watch it if you have not watched. Okay? In this way, we'll be signing off. Goodbye.